चलो स्टार्ट करते हैं. So this is the tagline of today. Enzyme. Success is costly, failure is deadly. This is true for enzyme also. Okay. We'll see what is the properties of enzyme. What is exactly enzyme? How it is? It's different from the catalysis, right? And what is the order of the reaction? How we can calculate the order? How we can calculate the rate? What are the different concepts about that? And then we'll study the type of catalysis, classification of the enzymes, right? Because from everywhere, every corner, they are asking the questions. Okay, so I can show you some sample how they are asking the question. They are not leaving any part of the enzymes. And if I can say in one line, enzyme is distributed in every syllabus, every unit. Okay, if you understand the enzyme, then you have a good grasp of the subject. And if you don't know, you don't understand the enzyme, then it's very difficult, right? So this chapter is very crucial. We are very seriously preparing for the examination, and always enzymes action, follow this line, learn from the failures. So enzymes is very motivational, because sometimes when you are preparing, so you have a lot of time, you have a lot of books, syllabus, everything is there, but due to lack of motivation, right, you are not able to absorb 100%, you are not able to achieve your target. So be furious about that. If you are really serious, be furious about, and always think about learning, not about the success, right? Because success is not a matter of concept, right? This is not a concept of thinking. Exactly, examiner can ask you any question from anywhere. So if you have this concept in mind, then you are better, you will prepare from the basics, because whatever the applied sciences are there, it may be the enzyme inhibition, it may be the graph, it may be the linear equation, it may be the monosubstrate equation, it may be the double substrate kinetics. So if you are running for shortcut, then forget and leave this field. Okay, better. And if you are ready for hard work and you can devote 2 to 3 hours for the lectures every day, and you are ready for the mock test every week, then certainly you are going to achieve everything whatever you are thinking. Because why this examination has been designed? This examination has been designed not to qualify the CSR to get the fellowship, rather than to catch a hold on the subjects. That way, every time you will see there is a lot of change in the pattern of asking the question. And from last 2 years, if you compare the question paper, then you will see obviously they are dominating 1 or 2 or 3 units. So you must be ready for at least 10 units, 10 to 11 units in thoroughly deep study, because we are discussing, we are studying here in the discussion mode. A lot of question will be asked, a lot of discussion will be there, a lot of doubt will be there. So you have not to make, you are not here for making the notes, and right, rather than you have to analyze the things. If you are not analyzing the things properly, then it's a very difficult to learn, right? So what you have to do, have a notebook by your side, and try to be regular. And as I promised you, this is the first lecture, demo free, and if you like it, you can continue with the regular enrollment, because already we have started this batch, and we are running 1 week ahead at least. So I'll share with you whatever the left lecture are there. Everything is going to be recorded and available. So not to worry, but you have to worry about what you are going to learn. So we learn today about the kinetics. We will learn today about the Michaelis-Menten equations. I am properly audible to all of you?
If anything Yes, is sir. there, you can, if any disturbance are there, anything is there, you can just revert back, okay? There will be no problem. So, we study about the kinetics, mechanical equation, and kinetic calculation. This is very important part. For that, we have to understand what is the principle of catalysis. Can anyone define what is the catalysis? What do you mean by the catalysis? So, catalysis, very simply, you know that acceleration of rate of reaction, which is not. And one question you can see in last year question paper. This was related with the principle of catalysis. There was one concept that was asked: if there is an uncatalyzed reaction and if enzyme is added, then what is their possibilities? You have to depict at least 10 possibilities were given, and you have to select any 3 or 4 out of them. So this is you can understand, you are enough mature to understand that what kind of analytics are required here. You know? Only attending the classes is not enough, or turning off the PPT or turning off the pages is not important. You need a proper guidance in the analysis and proper reach out the correct answers. So we'll practice that. So we'll study today about the enzyme kinetics, and the next lecture tomorrow I think will be about the enzyme regression. And today itself you can study the mechanism of enzyme catalysis. Yeah, tomorrow isozymes. Okay. So, what is general principle of catalysis? You see, everyone, I think you know about that, but still, we have to revise it because every concept you have to learn. Each and every minute detail you have to learn. Because learning higher concept is easy rather than basic concept. Basic concept always create a danger that you are going to forget. And if you are not able to recall it at a time when the question is asked, then you are certainly going to make mistakes. So whatever the doubts are there, you can ask me any time. Okay, you can interrupt me. You can. So I think many of students are new, so they are in the adaptive mode. For example, माइक्रोब्स आर देयर, पहले बैक्टीरिया को डालते हो कहीं मीडियम में तो वो तुरंत मीडियम स्टार्ट नहीं करता कंज्यूम करना, रादर देन अडॉप्ट करता है. तो मैंने अपने स्टूडेंट्स आर न्यू, तो जो पुराने बच्चे हमारे वो तो अडॉप्ट कर चुके हैं एंड दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क. सो व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस? कैटालिसिस इज लाइक ए टीचर. ओके, एक टीचर का रोल करता है. You have everything with you. Every type of notes are there. Every type of study material. Lot of free study material available on the YouTube. But you don't know exactly they will be really helpful for you cracking the examination, or they just time pass. So mostly of them YouTube videos are made only for to earn some money. They're not many times serious, right, for making your selections. We are here committed to make your selections. So if you are really serious, then learn by each and every points we are discussing here. Okay. So what is a catalysis? Catalysis and enzyme catalysis, a little bit having the difference. You will see that. Catalysis is accelerate a reaction without being consumed, and the rate of catalysis is always measured by what? Turnover number. Okay. So how the rate of catalysis is measured? By turnover number. Okay, turn. This is called as the turnover number. Okay, and accelerated means promoted. Sometimes there are different meaning. There is a difference between the accelerated term and promoted term. So it depends on what type of catalyst are there. Homogeneous catalyst are there, or homogeneous, heterogeneous or homogeneous catalyst are there. And what is the effect on the activation barrier? Okay. So all catalysis is because of decrease in the activation barrier. This is very important. You will understand shortly, and this is the general feature only. So you can see catalysts are mostly acting at a very low concentration, right? So less than 10 power minus 5 mole should be there, the enzyme concentration, and substrate concentration
is ranging between the 10 power minus 4 to 10 power minus 5 mole. They're not consumed during reaction, right? They're not going to consume, okay? And that's why they can again they can be used again and again. You can use, right? They do not affect the equilibrium of reversible chemical reaction when they accelerate the rate of approach to equilibrium point. And most chemical catalysis operates in the extreme reaction condition. So these are called as the extremozymes. So nowadays you will see the CSR scientists are asking about the extremozymes, so how they are acting, and one of the best example is the PCR, right? In which you can see enzyme is working at very high temperature, right? So enzyme are specific to reaction and to substrate. Chemical catalysis are very selective. That's why they are very specific. We'll understand how they are and why they are very specific. What is the role of amino acids? Which type of amino acids are common during the catalysis? Okay. So a lot of questions we will answer here during the study. So this is a class of long duration. So be ready for that. Okay. And again, I'm saying if you have any problem, you can ask in detail. So catalysis and free energy, what is the relation? This is asked in this SIR, and most of the students are doing this mistake because delta Z is decreasing. First thing you note down, why delta Z is decreasing? Because if the catalysis is involved, if the catalysis is going to accelerate a reaction, so how they are doing this, how they are accelerating this reaction, is totally depend on the stabilization of transition complex. And if they are stabilizing, I will show you the graphical way of establishing this fact that how this delta Z is going to be decreased. Okay, and rate constant, but rate constant K is increasing while delta Z is decreasing. This is a fact you must note it down. Okay, and the catalysis does not affect the end point of an equilibrium, but when they accelerate, how quickly equilibrium is attained. So catalysis is all about not quickly packing the product or framing the product, other than they are helping in getting the equilibrium in very rapid way. So this is also a kind of very important thing, right? Very important thing. How the catalysis is going to work. They are going to work for achieving the equilibrium quickly. That's why I think you will study shortly about the SSA. You know the SSA? What is SSA? Steady state assumption. Okay. So a lot of questions are coming from this portion also. Michaelis-Menten equation or steady state assumption. So I think up to this point, everything is clear. What is the catalysis? How much concentration is required? And if you see question paper of 2019 CSR, this question was asked. Enzyme, when substrate concentration is fixed, how the enzyme concentration is working. So you must be clear of each and every points. What is the catalytic power? Enzyme can accelerate a reaction. How much? By at least 10 power 16. Right. So in the examination you can see the tabular graph, and they can ask you which one is the most efficient enzyme based on this rate. So you have to match this point, 10 power 16. Okay. So this is the highest catalytic conversion. For example, you will see the urease. Urease is one of the best example, a very good example of this highly catalyzed reaction, very high speed, 10 to 10 power 4 per second. This is a rate of catalysis. We will learn how to calculate that. And another feature of enzyme is specificity. Okay, so enzyme is specific because of certain amino acid present in the active sites. So we should know, we will know how to reveal the structure of active sites and what are the amino acids are there, what kind of mechanism are there in the catalysis.
So what is the class of enzymes? From this portion also, a lot of question is asked. For example, they can give you the reaction and they can ask you what class of enzyme this reaction belongs, right? So this may be oxidoreductase, this may be transferase, hydrolysis, lyases, isomerases, ligases, right? So this may be a different type of question can be asked. So be very careful to learn each and every thing. Okay. So I think you are aware of this, and there is a shortcut. You can remember OT, highly, highly. Okay. क्या शॉर्टकट बना सकते हो? OT. दोनों लैंग्वेज कंफर्टेबल है ना? हिंदी इंग्लिश कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है किसी की. हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज करूंगा. एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो यू कैन इंटरप्ट. ठीक है? एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू एनीवन? लगातार इंग्लिश चाहिए कंटिन्यूअस या मिक्स ठीक रहेगा? गिव योर फीडबैक. राहुल करनी नए स्टूडेंट है. मिक्स सर, मिक्स. हाँ मिक्स में सर. हाँ ठीक. हाँ सर. तो एंजाइम की जो क्लास होते हैं ये शॉर्टकट याद कर लो, क्योंकि तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास फिक्स है. यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर. अगर फर्स्ट ऑक्सीडोरेडक्टेज है तो फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड ट्रांसफरेज है तो वो सेकंड ट्रांसफरेज ही रहेगा. ठीक है ना? एंड थर्ड हाइड्रोलेज है तो थर्ड हाइड्रोलेज ही रहेगा. तो ये इसका शॉर्टकट निमोनिक्स है ओटी हाईली. ओके. ओटी में जाते ही हॉस्पिटल में ओटी होता है, आपको याद ही होगा, है ना? ऑपरेशन थिएटर. और वहां पे बड़े स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं. तो ओटी हाईली, ठीक है. एंड आईली मीन्स आइसोमरेज ऑफ लाइगेज. ठीक है ना? तो ओटी हाईली आईली यानी ऑपरेशन थिएटर में हाईली स्पेसिफिक ऑपरेशन हो रहा है और इसमें कोई भी आ जा नहीं सकता. राइट. तो ऐसे याद कर लो. ओटी हाईली means O is the one, T second is the transferase. याद करो मेरे साथ बोल के पढ़ने की आदत डालो, वो ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा, याद भी हो जाएगा. ठीक है? तो O for oxidoreductase, T for transferase, HY for hydrolase, LY for ligases, I for isomerases, है ना? LI for ligases. तो इनका फंक्शन भी आपको साथ में याद रखना पड़ेगा. बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है राहुल, तो अभी म्यूट ठीक कर देते हैं आपको, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो जाता है. फिर जो बच्चे सिर्फ वीडियो देख के पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत आती है. तो ऑक्सीडोरेडक्टेज ये टर्म बड़ा स्पेसिफिक है. व्हाटएवर द कैटालिसिस इज देयर बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मुझे लगता है वैसे क्लास की चीजें सबको आना चाहिए. नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा. पहला ऑक्सीडोरेडक्टेज है. सेकंड ट्रांसफरेज. ट्रांसफर ऑफ फंक्शन है ना? ट्रांसफर ऑफ फंक्शन. ठीक है? ट्रांसफर ऑफ फंक्शन. कौन बोला बेटा? ओके. So oxidoreductase, transferase, hydrolysis. ठीक है? एंड हाइड्रोलाइजेस का मतलब जो वाटर की हेल्प से हाइड्रोलाइजेस है ना? जो भी डाइजेशन वाले रिएक्शन है, फूड डाइजेशन वाले रिएक्शन है, वो सारे हाइड्रोलाइजेस में. ट्रांसफरेज में जब आप फंक्शन को ट्रांसफर करते हो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में. एंड लाइगेसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. काफी कंफ्यूजन होता है लाइगेसिस और लाइगेसिस में. क्यों कंफ्यूजन होता है? क्योंकि लाइगेसेस में यू विल सी टू मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड विद हेल्प ऑफ एटीपी. तो ये 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है? व्हाट इज ट्रू अबाउट द लाइगेसेस? इसमें काफी बच्चों ने गलत किया था, बिकॉज एटीपी, मैग्नीशियम, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बिना उसके लाइगेसेस होता नहीं. तो बाकी मैक्सिमम लोगों ने इधर उधर से पाथफाइंडर से बेसिक चीजें पढ़ ली थी, इसमें एटीपी मैग्नीशियम का डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए वो गड़बड़ हो गए. काफी लोगों को क्वेश्चन गलत हो गए. लाइगेसेस अगर आप देखोगे, catalyze removal of group from addition of a group to a double bond or other cleavage involving electron rearrangement. Lysis is the kind of breaking of the bonds. जब एक complete molecule break होता है दो molecule में, this is called the lysis. Isomerase is very simple.
This is isomerization, D isomer, L isomer. These are kind of specific changes they can make. तो लाइगेसेस काफी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होता है और बाकी ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम आते हैं, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज वगैरह स्पेशली, और हाइड्रेज। और अगर आप ट्रांसफरेज देखोगे तो ट्रांसफरेज इज हाईली यूजफुल इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो वहां पे होता है। तो स्पेसिफिकली यू कैन सी एंड लर्न, आपको याद होना चाहिए ये। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज के लिए क्या लिखेंगे, EC1। ट्रांसफरेज के लिए क्या लिखेंगे, EC, बोलो। In the term of new classification, oxidative reductase is written as EC and class is 1, तो इसका नाम क्या हो गया, EC1। ठीक है। ट्रांसफरेज में आप देखोगे क्या है, EC, बोलो 2। इसी तरह से हार्डलेस के लिए क्या टर्म यूज करोगे, EC3। ठीक है, EC3। ओके, तो बहुत सारे रिएक्शन है जो कैटालिसिस में आप देख सकते हो। एथेनॉल टू एस्टल्डिहाइड कन्वर्जन, ये क्या है, इसमें NAD+, आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शन में यूज होते हैं, NAD+, NADH बनता है। तो ये आप समझ नहीं पाते हो क्या हो रहा है, एक्चुअली में हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है या ऐड हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन भी NAD+, अल्कोहल डिहाइड्रेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए एक क्लास, सब क्लास है ना, सब क्लास, और फिर उसके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ये सारे 111 दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये EC1 पहला जो होता है किसके लिए इंडिकेटर है, 1 के लिए क्लास, दूसरा क्या है बोलो, सब क्लास। ठीक, SC। थर्ड जो नंबर है किसके लिए है, सब क्लास, SSC। और लास्ट में जो क्या है वो है या तो कोफैक्टर होगा, NAD के लिए इंडिकेट करेगा, या कोई फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है बेटा, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफरेज, हेक्सोकाइनेज, काइनेज इज द वर्ड, अपन यू कैन सी कि बहुत ज्यादा यूज होता है सिग्नल ट्रांसमिशन, काइनेज है ना, फॉस्फोरिलेशन जिसको बोलते हैं। हेक्सोकाइनेज इज एन एंजाइम प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फेट ऐड होता है ATP गैस। यहाँ पे देखो डी ग्लूकोज था, मेटाबॉलिज्म में आप देखोगे डी ग्लूकोज कभी भी मेटाबॉलिज्म एंटर नहीं करता, पहले इसका क्या होता है, फास्फोराइलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सो क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे डी ग्लूकोज है, राइट। यहाँ पे देखो इसी तरह एथेनॉल में क्या टर्म हुआ एंजाइम का, अल्कोहल, क्योंकि एथेनॉल क्या है, अल्कोहल, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज है ना। और इस तरीके से अभी ये पुराना क्लासिफिकेशन है, कोर्डियाडेज, हेक्सोकाइनेज अभी भी चल रहा है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। लेकिन अभी जो CSI में क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि भाई कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एटलीस्ट EC 2 टर्म में बताओ, 3.4 है तो क्या होगा, EC3 हो गया हाइड्रोलेज के लिए, और फोर्थ है ये जो पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक कर रहा है वाटर के हेल्प से। ठीक है ना, सब क्लास, और 17 लिखा है सब क्लास, और 1 क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इस पे अटैक किया, कार्बोक्सिल पे अटैक किया, तो इसलिए यहाँ पे देखोगे देयर इज अ सर्टेन चेंज। अभी क्वेश्चन आंसर पे सेशन पे आएंगे। लाइसिस अगर आप देखोगे दिस इज पायरुवेट decarboxylation is there, okay, and pyruvate is going to convert into the acetaldehyde, okay. Isomerase is malate isomerase and malate to fumarate conversion है। तो यहाँ पे 5th क्लास है तो EC5 से स्टार्ट हो रहा है, 6th क्लास है तो EC6 से स्टार्ट हो रहा है, एंड 4th क्लास है तो EC4 से स्टार्ट हो रहा है। एंड जैसा रिएक्शन है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। यहाँ देखो सिस ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा है मैलेट टू फ्यूमेरेट, तो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, यहाँ पे CO2 इन्वॉल्व हो रही है, यूज हो रही है, तो कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ रिमूव हो रही थी, यहाँ रिमूव हो रही थी, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, इसीलिए कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे CO2 ऐड हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन ऐड हो रहा है, इसमें कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो डिकार्ब। आई होप दिस इज क्लियर, एनी डाउट इज देयर, बोलो, एनी डाउट इज देयर। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ
अगर डी ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है तो उसको ईसी कौन सा टर्म दोगी? ईसी 1 2 3 4 5 में से क्या टर्म दोगी? 2 सर। ईसी 2, क्योंकि ट्रांसफरेज है तो उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, ओटी हाईली आई। ओके, ओटी हाईली आई। अब लाइगेजेस में जैसे क्या हो रहा है, लाइगेजेस में डबल रिएक्शन है। एक तो पायरुवेट से अगर ऑक्सिडेटिव स्टेट पूछ रहा है तो यहाँ कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, और लाइगेजेस का क्या मतलब है? ज्वाइनिंग, है ना, विद हेल्प ऑफ एटीपी। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं। ये दोनों चीजें पूछा जा सकता है कि लाइगेजेस में अगर ये रिएक्शन है पायरुवेट टू ऑक्सिडेटिव स्टेट मेटाबॉलिक क्रेब्स साइकिल में, तो वहां पे वो पढ़ाने को नहीं मिलेगा, यहीं भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कंबाइन भी कर रहा है दोनों मॉलिक्यूल, एंड देन व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स इज देयर, लाइगेजेस का डेफिनेशन भी फॉलो हो रहा है जो मैंने बताया था, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। दिस इज गोइंग टू कंबाइन, दैट्स व्हाई दिस इज। आवाज नहीं आ रहा, अच्छी से आवाज नहीं आ रहा सबको? किसको किसको नहीं आ रहा अच्छी से आवाज? बोलो बेटा, सबको आवाज अच्छे से आ रही? मैसेज में बॉक्स में डालो अगर बोल नहीं सकते हो तो। मैसेज में आवाज में प्रॉब्लम आ रही सबको? चलने आनी तो नहीं चाहिए वैसे। हेलो, हाँ, नवीद, नवीद को तो क्लियर है। और दिशा, दिशा आपको आवाज आ रही है अच्छे से बेटा? हाँ, थोड़ा सा आपके यहाँ पानी वानी बरस रहा होगा ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा आपको? ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, है ना। हाइड्रोलेज और लाइगेजेस में क्या फर्क है? दोनों जगह ब्रेकिंग हो रही है, राइट, ब्रेकिंग हो रही है, बट लाइगेजेस में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस है? Lysis is rearrangement of the bond, breaking of the bond. CO totally break हो रहा है into the CO. This is the lysis. And if you see the hydrolysis, water is there. तो water add होने से दो मॉलिक्यूल में ये ब्रेक होगा सीधे। तो पॉलीपेप्टाइड का शॉर्टनिंग, ये बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस का। लिपिड का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन इनटू द पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स को फर्दर अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। हाइड्रोलाइसिस बिना तो हो ही नहीं सकता। ट्रांसफरेज स्पेसिफिक है, फास्फोराइलेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म में एंट्री हो गया। तो सीएसआर ने यहाँ से क्वेश्चन उठाया था, फ्रुक्टोज था, फ्रक्टोज जो फॉस्फेट है किस रूप में मेटाबोलाइज होगा, 6 फॉस्फेट के रूप में या फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट के रूप में मेटाबोलाइज होगा। तो ये सारे एंजाइम के क्वेश्चन है। तो एंजाइम पे जिसका कमांड है वो आगे बढ़ेगा। एंड अभी तो मैंने बेसिक स्टार्ट किया, अभी तो कोई ज्यादा डेप्थ में गया नहीं। अभी तो बहुत सारे बच्चे नए हैं, तो आज स्टार्ट भी किया हमने काफी दिनों के बाद, तो इसलिए बेसिक ही चल रहा है। अगर कोई को किसी को डाउट है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही रहा हो, तो एंजाइम को फैक्टर क्या होगा? आप जानते हो एंजाइम रेगुलेटेड होता है, एंजाइम इज ऑलवेज रेगुलेटेड एंड विदाउट को फैक्टर यू कैन नॉट थिंक कोई ऐसा। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। सो अगर आप देखोगे तो कोई भी एंजाइम का नाम बताओ जो विदाउट को फैक्टर के रेगुलेट होता हो। सबसे बेस्ट एंजाइम वही होता है जिसमें एटलीस्ट मेटल को फैक्टर है। ओके, मेटल का क्या असर पड़ता है? मेटल का एग्जांपल आप देख सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ सेविंग एंजाइम्स हैं वो सारे मेटल वाले हैं, और बहुत कम एंजाइम है जिसमें विटामिन का यूज है ना, विटामिन B12 या ये सारे देख सकते हो एग्जाम्पल। तो 1 बाय 1 हम डिस्कशन करेंगे। अब ये देखो, पहले तो ये भी सीएसआर में काफी पूछा हुआ है, हीमोग्लोबिन से स्टार्ट करते हैं, एंड देन नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में पूछा हुआ था, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था, है ना। मॉलिब्डेनम यूज होता है, MO, है ना। एंड Mn2+ कहाँ यूज हो रहा है? आर्जिनेज। आर्जिनेज का क्या काम है? आर्जिनाइन को कन्वर्ट करता है ना। Mg+2 का एक्सोकाइनेज। डीएनए पॉलीमरेज में कौन सा मेटल यूज होता है? तो ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती मैग्नीशियम कर लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज में और कार्बनिक एनाहाइड्रेज में ये जिंक होता है, ये कभी मिस्टेक नहीं करते। मैग्नीशियम नहीं बताना, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज का पार्ट है, Mn+ आर्जिनेज का पार्ट है, MO नाइट्रेट रिडक्टेज का पार्ट है। बहुत क्लियर डिफरेंशिएशन करके आती है।
और आयरन का पता है Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, दिस इज पार्ट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटलीज, पेरोक्सीडेज, है ना, ये सारे में पाया जाता है Fe2 प्लस Fe3। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या है, Cu2 प्लस। ओके, जिंक किसमें है, 3 में है, डीएनए पॉलीमरेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, क्लियर है। मैंगनीज कहां पाया जाता है, Mg+2 हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज में, Mn2 प्लस आर्जिनेज में। पोटेशियम कहां पाया जाता है, पायरुवेट काइनेज में। यूरियस का देखो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम, सबसे स्ट्रॉन्ग एंजाइम जो कैटालिटिक एक्शन बहुत फास्ट है वो यूरियस। निकल +2 Ni2 प्लस, है ना, ये नोट कर लो। डीएनए पॉलीमरेज में कभी भी क्या नहीं है, मैग्नीज, है ना, डीएनए पॉलीमरेज में ऑलवेज देयर इज ए जिंक। ठीक है ना, वॉइस अभी भी कट रही है राहुल, वॉइस क्लियर है सबको? एक बार किसी की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है मौसम का। सर बीच बीच में स्लो हो जा रहा है, आपकी टोन जो है ना वो स्लो हो जा रही है सर। हाँ एकदम बीच बीच में सर। अच्छा, बीच में डाउन हो रही है। हाँ वही कह रहा हूँ कि मौसम थोड़ा खराब है ना, तो मैं भी इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो फिर भी मैं काफी लाउडर होने की कोशिश करता हूँ कि अभी ठीक हो जाएगी आवाज आपकी, है ना, आवाज मिलेगी आपको अच्छी। तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। कोएंजाइम कोफैक्टर की बात कर रहे थे, तो कोफैक्टर इज ऑलवेज ए मेटल आयन, राइट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी कैटालिसिस और काफी मल्टीपल मैकेनिज्म से कैटालिसिस होती है, इसलिए मेटल का बहुत ज्यादा रोल है। और अगर कोएंजाइम का देखोगे ये लिमिटेड वाले हैं, है ना, ये लिमिटेड रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन में जाता है, जैसे बायोटीन CO2 ट्रांसफर में काफी कॉमन है। THF अगर आप देखोगे तो ये 1 कार्बन ग्रुप में ट्रांसफर करता है, राइट, एंड देन यू कैन सी TPP एल्डिहाइड ट्रांसफर करता है, राइट, FAD हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर करता है। अभी ठीक है आवाज सबको? अभी मैं काफी लाउडर हूँ नवीन? हाँ सर अब क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो इन मैंने चेक किया था, सेटिंग हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी मेरे ख्याल से ठीक है। चलो ओके, सो ये तो कॉमन एंजाइम की बात होगी, मेटल आयन कैटालिसिस की बात होगी। कोएंजाइम कहाँ पे यूज होता है ये आपको पूछा जा सकता है। अमीनो ग्रुप के ट्रांसफर में कौन सा एंजाइम यूज होता है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट। जो अमीनो एसिड सिंथेसिस पढ़ेंगे जब तो आप देखोगे ये टर्म काफी कॉमन होगा, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, क्योंकि अमीनो ग्रुप को एडिशन करना होता है ना, कई सिंथेसिस होती है अमीनो एसिड की, तो जहाँ पे नए नए एंजाइम अमीनो एसिड बनते हैं तो उसको उस हिसाब से नामकरण करते हैं, जैसे एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, पैराडॉक्सल फॉस्फेट ना, इसका काम ही अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करना। कोएंजाइम में काफी सुना होगा मेटाबॉलिज्म में, they are going to transfer acyl group, acyl coenzyme carboxylase, ठीक है ना, हाँ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, राइट, ट्रांसएमिनेशन। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये सारे TPP FAD NAD का ये पार्ट है। तो काफी ये रिएक्शन में कॉमन है और ये मल्टीपल टाइम यूज होंगे, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दीज कॉमन पॉइंट्स कि TPP क्या करता है, डिहाइड्रोजन ट्रांसफर, FAD क्या करता है, हाइड्रोजन एटम का करता है, NAD क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का करता है, एंजाइम कौन सा है, ऐसे पूरा याद होना चाहिए। कोएंजाइम में एसिल ग्रुप ट्रांसफर करेगा, PLP किसको ट्रांसफर करेगा, अमाइनो ग्रुप को करेगा, ठीक है, विटामिन B12 किसको करेगा, एल्किल ग्रुप को करेगा, ठीक है, बायोटीन। तो इसकी डेफिशिएंसी फिर पूछने लगते हैं कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा। तो अगर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर पता है कि ये चीजें ट्रांसफर हो रही है, ये एंजाइम है, तो एंजाइम तो वर्क ही नहीं करेगा ना। जो भी एंजाइम है, सपोज अगर मैं कहूं कि ये थायमिडिन सिंथेज वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, है ना, तो क्या कारण है, क्या रीजन हो सकता है? तो ये रीजन ये हो सकता है कि कोएंजाइम इज मिसिंग। अगर हम बहुत सारा विटामिन नहीं ले रहे हैं, जैसे कोरोना में आपने देखा
बहुत सारा विटामिन लोग लेने लगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि एंजाइम म्यूटेट कर गया या उनके कोफैक्टर रिमूव हो गए, वो नॉन फंक्शनल होने लगे एंजाइम, तो विटामिन की सप्लाई से वो रिस्टोर हो गया। तो एंजाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और वाइटल एंजाइम में आप देखो सारे मेटल है, और किस कैटेगरी के मेटल है, Mg, Mn, पोटेशियम, ठीक है, पायरुवेट काइनेज में तो पूरा पोटेशियम है, निकेल, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, Fe2, Fe3, ये सारे जो मेटल आयंस है ना, कैटलेज, पेरोक्सिडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सब कितने इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आप जानते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, पूरा रेप्लिकेशन इसी पे डिपेंड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हम जो CO2 को कन्वर्ट कर पाते हैं कार्बोनिक एसिड में, वो इसका पार्ट है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज अगेन जिंक यूज करता है। अगर लैक्टिक एसिड का रोल आप देखोगे तो लैक्टिक एसिड क्या करता है, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता रहता है। इसी तरह से अल्कोहल हमारी बॉडी में बनता रहता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में इंटरमीडिएट फॉर्म को। एंड देयर इज ऑप्टिमम ऑफ एवरी एंजाइम, ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ एवरी एंजाइम, ये भी आपको पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल राइबोन्यूक्लियस का आजकल बड़ा है, राइबोन्यूक्लियस किस व्हाट इज द ऑप्टिमम केस फॉर राइबोन्यूक्लियस, 7.8, फ्यूमरेज 7.8, ट्रिप्सिन 7.7, कैटलेज 7.6, पेप्सिन 1.5, आर्जिनेज 9.7। तो सबका ऑप्टिमम पीएच अलग होता है। चलो ये कुछ क्वेश्चन करते हैं। A catalysis can promote product formation during a chemical reaction by, किस मैकेनिज्म से प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन को? Lowering the activation energy barrier, stabilizing transition state, positioning reactant in the correct orientation, bringing reactant all together, or all of the above. Which one is the correct? Tell me. So all of them. क्यों? एरो लगा इसलिए? एरो लगा इसलिए? No. No. Okay. Any other reason? इसका रीजन ये है कि देखो ये सारे रीजन है कैटालिसिस के। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज नहीं करेगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। और पोजिशनिंग रिएक्टेंट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, एंजाइम कैटालिसिस का मेन फंक्शन यही है। मेन फंक्शन क्या है कैटालिसिस का? यही फंक्शन है कि जितने भी रिएक्टेंट है उनको प्रॉपर एक ओरिएंटेशन देना, ठीक है ना। और नहीं ये नहीं है बेटा, ये सारे ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव ये। एंड ब्रिंगिंग रिएक्टेंट टुगेदर, एंजाइम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, रादर देन क्या करता है, आप देखो कि मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम में तो ये होते हैं, सारे सबस्ट्रेट को वो एक एक्टिव साइट के अंदर कर देता है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इसलिए कैटालिसिस का जो फंक्शन होगा वो सारा ही। आई थिंक दिस इज क्लियर। कोई डाउट है किसी को? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, राइट बेटा? अभी आवाज आ रही मनीषा? शुरू में मेरे ख्याल से आवाज की इशू था, अभी तो प्रॉपर हो गया होगा, क्योंकि मैं भी नई प्लेस पे हूँ तो नेटवर्क का थोड़ा इशू हो सकता है, बट अभी नहीं होगा। और रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर करूंगा ही, बट आपको बने रहना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आराम से चैट बॉक्स में आप मैसेज डालो, है ना, आप शेयर करो, क्योंकि मुझे समझ में तभी आएगा जब आप कुछ बोलोगे, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजाइम कैटालिस्ट, ये बताओ। It's a position reactant in the correct orientation. It lowers the activation barrier. It binds the transition state tighter than the substrate. Yes, third वाला बहुत doubtful है ना। और D है all of the above। इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा बेटा? डी सर, डी। डी वाले के बारे में बताओ। It lost to the activation energy barrier. It binds the transition tighter than substrate, ऐसा हो सकता है? This is possible। हाँ, मनीषा बी कर दो, ठीक है। रूपांची, what do you say?
अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं ना, क्वेश्चन रिएक्टेंट इनकरेक्ट ओरिएंटेशन एट लो ऑफ द एनर्जी बैरियर। राहुल कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है, तो ए बी दोनों सही है अभी। और अभी सी में थोड़ा डाउटफुल है, इट बाइंड ट्रांजिशन स्टेट टाइटर देन सबस्ट्रेट। कितने लोगों को पता है ये फैक्ट है? खाली ऑल ऑफ द एबव मत देखो, पूरा का पूरा आंसर भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये सीएसआर में भी होता है कि दे आर गिविंग यू द ऑप्शन कि अगर कोई है चैलेंज करना चाहते हो तो करो, तो अगर प्रॉपर नॉलेज होगा देन यू कैन चैलेंज। तो चलो ये मैं बता देता हूँ, ये ट्रू है, इट बाइंड द ट्रांजिशन स्टेट टाइटर देन द सबस्टेट, क्योंकि अगर सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ट्रांजिशन स्टेट को बहुत टाइटली होल्ड करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए, और सारा पावर लगता है ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबलाइजेशन में। तो उस चीज को ना कह करके इन्होंने दूसरे वे में कहा है, इट बाइंड्स द ट्रांजिशन स्टेट टाइटर देन द सबस्टेट एंड देन ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो थोड़े कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि बोर ना हो। एन एंजाइम एक्टिव साइट इज द लोकेशन इन द एंजाइम वेयर, व्हाट इज द एक्टिव साइट, इसके बारे में पूछ रहे हैं। Protein side group are brought together by bending and folding form a site for interaction with substrate. The catalyst interaction with the enzyme, catalyst molecule are generated, substrate creates the catalyst molecule. Which option is going to be correct definition of enzyme active sites? डॉक्टर शबनम आप ट्राई करो। राहुल ए, हाँ ए का तो फंक्शन लग रहा है, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट थ्री? देखो हमें सीएसआर के लिए ना सारे ऑप्शन को जज करना है, हमने ऑप्शन लगा रखा है ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू। बट हमें बिफोर गिविंग द डिसीजन क्यों नहीं होगा ये, इसके बारे में ज्यादा सोचना है, तब हम जाके सक्सीड करेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं है? सबस्ट्रेट क्रिएट द कैटलिस्ट मॉलिक्यूल, नो, ये कभी नहीं होगा। कैटलिस्ट मॉलिक्यूल आर जनरेटेड, कभी भी जनरेट नहीं होता है। कैटलिस्ट इंटरेक्शन विद द एंजाइम, कैटलिस्ट इंटरेक्ट विद द एंजाइम, तो ये अलग से नहीं होता इंटरेक्शन, इसलिए ऑप्शन इज ए, ऐसे बोलना है जब भी बोलना है, ठीक है बेटा। दीपांशी क्लियर? नाउ आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, मुझे बता दो, ठीक है ना, आवाज परफेक्ट आ रही है? इंटरेक्टिव बने रहो ना, हमें भी पता लगता रहेगा क्या हो रहा है। एन एंजाइम एक्टिव साइट इज लोकेशन इन एन एंजाइम वेयर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होता है एक्टिव साइट में? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आर जनरेटेड, बिकम कैटलाइज्ड, अंडरगो चेंज, मोर देन वन करेक्ट रिस्पॉन्स इज देयर, नथिंग इज करेक्ट। क्या बोलोगे, क्या होता है एक्टिव साइट्स में? मिनिस्टर ट्राई करो। सर सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट अंडरगो चेंज। हाँ सी होगा। हाँ सी होगा, बट ये ए बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंजाइम एक्टिव साइट जो होता है यहाँ पे सबस्ट्रेट का रिएक्शन होता है, ना कि जनरेशन होता है, ठीक है। जनरेट नहीं होगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जब भी आएगा इंटरेक्ट करेगा। और बिकम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो वो पहले से है, तो बिकम कैटलिस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो केवल चेंज करेगा। अभी में बहुत सारे पड़ाव जाने हैं, बट इसकी पहले एक और सीएसआर का बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ताकि वो देखने से आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा एडवांस में हम पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट एज पर सिलेबस है। जैसे एक क्वेश्चन ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कॉल्ड एज एसएसए is often used when intermediates are involved. Using generalized reaction sequence, अगर मान लो ये इक्वेशन है और इसमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दें, ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं कि showing the change in concentration of B during the reaction graphically when, कौन सा ट्रू है ना, K2 greater than K-1 तब होगा
तब बी स्टेबलाइज होगा, या K2 लेस देन K-1 तब स्टेबलाइज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब कैसे दोगे? अभी इसमें तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वो भी सॉल्व हो जाओगे। इतने जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा। सब बी बोल रहे हो मनीषा? मनीषा आपका ऑप्शन बी है बेटा। वांची, अच्छा, K2 लेस देन K-1। अच्छा, K2 ग्रेटर देन नहीं होगा? सर K2 यूटिलाइज हो गया ना सर। देखो ये क्या है, बी क्या है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ना, आंसर तुरंत मिल जाएगा। अभी वही तो डिस्कशन हो रहा था। बी है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक, और ट्रांजिशन स्टेट में पूरा फोर्स लगेगा तब प्रोडक्ट बनेगा। सी क्या है? प्रोडक्ट। बात समझ रहे हो? अब ये दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन K2 ज्यादा होगा K-1 से, तब बी स्टेबलाइज होगा और तभी प्रोडक्ट बनेगा। देखो फास्ट स्टेप क्या है, ये फास्ट स्टेप तो है नहीं सॉरी, ये फास्ट स्टेप है एंड दिस इज द स्लो स्टेप, ठीक है। स्लो स्टेप में आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ओवरऑल जो है K2 और K1 का K-1 का कंपेरिजन करिए, फॉरवर्ड वर्सेस बैक, यही ना। स्टेडी स्टेट में आप क्या देखते हो? फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड, है ना, फॉरवर्ड इक्वल टू बैक, माने स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेडी स्टेट। ये दोनों कंडीशन में आपको डिस्कस करना है कि क्या फर्क पड़ेगा ओवरऑल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर K2 ग्रेटर देन K-1 हो जाए और K2 लेस देन K-1। ये होमवर्क है, ये नोट कर लो, ये आपको कल सॉल्व करके आना है। फिर से मेरी आवाज ब्रेक हो रही है कृपांशी? हेलो, आवाज ब्रेक हो रही बेटे? आवाज ठीक है ना? आई थिंक ठीक ही होगी मनीषा, आज ब्रेक हो रही है। चलो ये नोट कर लो थोड़ा सा, कल के होमवर्क के लिए। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है, ओके। बीच बीच में कुछ हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बादल वगैरह काफी है, रेनी सीजन है, लेकिन अभी ठीक होगी। और एक क्वेश्चन देखो ये आया है, एंजाइम हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन बाय, है ना, एंजाइम हाउ दे आर गोइंग टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसमें बताओ, कोवेलेंट इंटरेक्शन इन सबस्ट्रेट, इससे सर का क्वेश्चन है। बाइंडिंग ओनली विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, चेंजिंग रिएक्शन इक्विलिब्रिया, फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन इन सबस्ट्रेट। बी सर, वीक इंटरेक्शन। डी, अच्छा, अब बताओ तीनों में से ये ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है? डी तो चलो मान लो। अगर कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है, अगर नहीं ये होता है। मैं बता दूं, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज में ये भी टाइप ऑफ, जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, तो कोवेलेंट कैटालिसिस भी आती है, आपने सुना कोवेलेंट कैटालिसिस। तो वो टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। होता है। इन्होंने एग्जैक्टली स्पेसिफिक रीजन पूछा है कि एंजाइम हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बाय। तो ए बी सी क्यों नहीं होगा, ये अगर बता दोगे तो समझ लो सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है। इसलिए मनीषा करिए ए होगा, वाई ए होगा, इसका रीजन बताओ क्या? राहुल ट्राई करो बेटा, सब लोग अपना ट्राई करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, गलत होगा लेकिन सीखोगे ना, है ना। राहुल भी कह रहे ए होगा,
बी क्यों नहीं होगा? बाइंडिंग ओनली विद द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सारे रिएक्शन होते हैं, ओनली वर्ड यूज कर दिया इसलिए नहीं होगा। चलो ये मान लिया। अभी ये कह रहे हैं एक ए और बी दो लोगों का ये है ऑप्शन, बी हमने गलत कर दिया। सी के बारे में क्या है? सी भी तो हो सकता है, सी भी हो सकता सर। हाँ वही कह रहा हूँ, सी भी तो हो सकता है। इस एसआर की क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, चेंजिंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करता है ना, जल्दी से क्विकली अचीव करता है इक्विलिब्रियम, इसलिए भी तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है। अब याद करो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैंने क्या बोला था। कैटालिसिस का जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ाने शुरू की थी, मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ, वहीं से ये क्वेश्चन है शुरू में जो बताया था। तो इसी तरह से 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से जब स्टार्ट करोगे, एक एक चीज छोटी छोटी चीज पढ़ोगे, फिर जोड़ के जब क्वेश्चन आता है देन यू विल हैव टू सॉल्व। हाँ हम देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था सारा, ऑल कैटालिसिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन एक्टिवेशन वैल्यू बाय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने दिया था एक तो एफिशिएंट लो कंसंट्रेशन, नॉट कंज्यूम, डू नॉट अफेक्ट क्रिया है, केवल एसिलेट करते हैं, जल्दी से क्रिया पहुंचने, ठीक है। एंड मोस्टली ऑपरेटिंग स्पेसिफिक कंडीशन, एंजाइम आर स्पेसिफिक रिएक्शन एंड टू सबस्ट्रेट केमिकल कैटालिसिस आर लेस एक्टिव। एंड फ्री एनर्जी के बारे में बताया था, डेल्टा जी विल डिक्रीज, रेट ऑफ rate constant will increase. Why? Because सारा टारगेट है स्टेबलाइजिंग एंड ट्रांजिशन स्टेट। अब तुम्हें इसी पैरामीटर को लेके चलना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करें। ये बात समझे बेटा? क्वेश्चन में आते हैं, अब तुम्हें ये रिएक्शन भी दिखा देते हैं, अगर अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन डिस्कशन इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बर्डन न लगे। आज तो मैं कर यहीं पे एंड करूंगा इसी क्वेश्चन के साथ। हाँ ये वाला क्वेश्चन, एंजाइम हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन बाय। आपको देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का डेल्टा जी तभी कम होगा जब स्टेबलाइज होगा ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट किस वे में स्टेबलाइज होगा? तो उसमें लिखा था कि सबस्टेट से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट को टाइटली होल्ड करता है एंजाइम, and that will be because of forming weak interaction with substrate। तो B भी नहीं सही होगा, C भी नहीं सही होगा, और A तो स्पेसिफिक है, किसी किसी रिएक्शन में कोवैलेंट इंटरेक्शन आप देख सकते हो, लेकिन इन्होंने जनरली पूछा है। जनरली लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी क्यों हो रही है? तो वो D की वजह से होगी, ना कि A की वजह से, ना B की वजह से, ना C की वजह से। तो और कुछ पढ़ना है कि कल पढ़े आप? जैसा कहो तुम लोग। सर कल ही पढ़ते हैं क्योंकि आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। आज बहुत डिस्टर्बेंस है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि आज होल्ड कर दूं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, कल फिर हम लोग करेंगे क्लास 9 से स्टार्ट, ठीक है। बाय बाय, रिवाइज कर लेना थोड़ा। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।